नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ अजीत सिंह। हैदराबाद के चार मीनार के पास भीषण आग लगने की खबर ने सबको चौंका दिया। दरअसल इतनी बड़ी ये आगजनी थी कि 17 लोगों की मौत हो गई, जिसमें बच्चे और महिलाएं और पुरुष भी शामिल थे। दरअसल आग उस वक्त लगी जब लगभग सुबह का वक्त था। तकरीबन 6 बजे के आसपास जो है फायर को इसकी जानकारी मिली। जानकारी मिलने के बाद से ही तमाम जो फायर के अधिकारी है वो वहाँ पर पहुँचे और आग बुझाने का प्रयास उन्होंने किया, लेकिन आग को बुझाते बुझाते तकरीबन अंतिम तक ये खबर आई कि 17 लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल अब इसके बाद कहीं ना कहीं जो वहाँ के मंत्री हैं खुद फायर विभाग की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठा रहे हैं कि जिस प्रकार से एनओसी दी जाती है, सभी चीज़ों की जांच पड़ताल करके दी जाती है कि नहीं दी जाती। आइए हम सुनावाते हैं कि क्या कुछ कहना है वहाँ के जो नेता हैं उनका और खुद फायर अधिकारी का। In Krishna Pearl's shop and then residential complex in Guljal House area. So around 6:16, fire department got a fire call from this local residents, and at 6:17, fire department have dispatched the fire engines. Subsequently, 11 fire engines were dispatched along with sufficient staff. So when they came, there was smoke and fire in the ground floor. Our people tried to extinguish the fire along with rescuing the people. So the fire department has used breathing apparatus and oxygen masks to rescue the people, and then 11 people were taken out of the first floor and they were shifted to the hospital. 4 people were rescued from the top floor. So as per the information we got as of now, most of the people could not survive, those people who shifted to the hospital. How many casualties reported? The information is 17 people could not survive. What is the cause? What is the reason behind So this fire? the cause of fire could be in all probability as per the version of the workers working here, and then the preliminary examination. There is a short circuit at the mains of the residential and commercial cum residential complex. So at the mains there was spark, and most of the fire happened near the mains and then 2 shops nearby. Sir, Minister Kishan Reddy claiming that the fire tender has came late. See, there was I am clarifying, there was a call at 6:16 and 6:17 a fire tender was dispatched. I spoke to the local people also. They said they were here around 6 o'clock. So people called around 6:16. We know we log everything, and then immediately other fire tenders were also dispatched. There was no deficiency from the fire department in fighting the fire or trying to rescue the people. One entry is there, sir. So there is only one entry of 2 meters, which is like a tunnel kind of entry is there into the building. And to access the first floor and second floor, there is only one staircase of 1 meter width, which is very difficult for any firefighting operators to access, number one. In spite of that, our people could do their job. Then second thing is it's just difficult for the people to escape from single staircase. How much time does it took to control the fire? By I think 9 o'clock it is over. By 9 o'clock the fire was under control. आज 4 मीनार के पास जो गुलदरवाज है, गुलदरवाज में आप सब लोगों को मालूम है इधर पियर्स का बिजनेस ज्यादा होता है। उसी बिजनेस में काम करने वाले एक परिवार जो शॉप भी है, उसके पीछे उनके ऊपर घर भी है, मगर शॉर्ट सर्किट के कारण जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें बहुत लोग इसमें देहांत हुआ और कुछ घायल भी है। अभी अलग अलग हॉस्पिटल्स में डेड बॉडीज है और लगभग 6 बजे सुबह इंसिडेंट हुआ, ऐसा अधिकारी बता रहे। उनका परिवार के लोग भी मैं मिला हूं। एक ही विषय है, ऐसे इंसिडेंट होना बहुत दुखी बात है। कोई इसको किसके ऊपर भी आरोप नहीं कर रहा हूं, मगर पुलिस डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इस 4 डिपार्टमेंट लगातार हैदराबाद शहर में, क्योंकि हैदराबाद शहर बढ़ते हुए शहर है, अलग अलग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी लगातार आ रही हैं और एक डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सिटी है। करोड़ों लोग तेलंगाना में
लगभग 4 करोड़ लोग हैं, तो 1 करोड़ से ज्यादा हैदराबाद में गुजारते हैं लोग, और लाखों लोग हर दिन आके जाते रहते हैं। ऐसे हैदराबाद में एक फायर डिपार्टमेंट का और मजबूत करना चाहिए। फायर डिपार्टमेंट का जो टेक्नोलॉजी हो, इक्विपमेंट्स हो, वो कम है। आज भी मैं देखा हूं, जो अधिकारी परिवार बता रहे, जो काम करने वाले लोग बता रहे, 7:30 तक पूरे उनका इक्विपमेंट नहीं थे। जो अंदर जो स्मोक के कारण ऑक्सीजन नहीं रहते हैं, उसके समय अंदर जाना मुश्किल है लोग। मगर इसके लिए आने वाले दिन में और अच्छे टेक्नोलॉजी आना चाहिए, कोई पैसे का कमी नहीं रहना चाहिए। जितने पैसे हो सरकार फायर डिपार्टमेंट को देना, फायर डिपार्टमेंट अलग अलग इक्विपमेंट लाना, फायर डिपार्टमेंट को जो स्टाफ है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी देना, और जो भी लोग आज इधर एक्सीडेंट में देहांत हुए, मैं केंद्र सरकार से उनको असिस्टेंट दिलाता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री से बात करके सरकार की तरफ से जरूर उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देने के लिए प्रयास करता हूं। अभी पुलिस डिपार्टमेंट बताना है। अभी हॉस्पिटल में लगभग 17 लोग ऐसा बता रहे एडमिट हुआ, इतने कितने डेथ हो गए उन लोग बताना चाहिए। दर्दनाक वाकया आज हादसा गुलजार हाउस में हुआ है, जिसमें एक खानदान जो पिछले 125 साल से इस इलाके में रह रहा है, उन्हीं के इमीडिएट फैमिली मेंबर्स 17 लोगों की आज मौत हुई है, और बड़ी तकलीफदेह बात है। और मैं इन 2 नौजवानों का शुक्रगुजार हूं कि जो सुबह में ये लोग अंदर घुसकर नमाज सुबह 6 बजे 5:30 पौने 6 बजे दरमियान में अंदर घुसकर बचाने की कोशिश भी किए, फिर फायर सर्विस भी आया। मगर अफसोसनाक बात है, और हम ताज़ियत पेश करते हैं उनके ये डिसीज फैमिली मेंबर्स के लिए। एग्जैक्ट 6:10 को इधर आँच लग गया। हम लोग फ्रेंड के साथ जा रहा था, 2 लेडी ठहरा हुआ था। उन लोग बोला भैया मेरा फैमिली अंदर, बच्चा है छोटा। हम लोग पूछा मैडम दरवाजा किधर है, गेट इधर से नहीं आ सकते, आँच पूरा इधर से आ गया। तो हम लोग शटर तोड़ के हम लोग ऐसे पूरा अंदर घुस गया। अंदर घुसे बाद में फिर एक दीवार है, वो दीवार को हम लोग तोड़ के करके 5-6 ने पूरा सामान हथौड़ी मंगा के पूरा सब्बल मंगा के अंदर घुस गए। हम लोग घुसे बाद में अंदर आँच बहुत था, तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर भागे ऊपर। हम लोग इनो और मैं हम लोग दोस्त थे, पूरे भागे। हम लोग ऊपर देखा तो आँच बहुत, 1 घंटा वेट करे बाद में थोड़ा पूरा आ गए ये लोग। पुलिस का भी गुड वर्क था भाई, और फेरिशियन भी आ गया, पूरा कॉपरेट करे। अच्छा बस इतना है कि वो आँच बहुत होने की तरफ से बचा नहीं सके।